Hello, am I audible? Yes, sir. So we will start this class. So today we will discuss this Jacobson radicals. So we will discuss Jacobson radical of a ring and prove some results on it. So Jacobson radical. So we gave a characterization for nil radicals as the intersection of all the prime ideals. Okay, so we just go on and specialize a bit by defining this Jacobson radical as the intersection of all the maximal ideals of it. So we have this definition. So the Jacobson radical. So the Jacobson radical of a ring of a ring is defined to be the intersection of all the maximal ideals of a ring A. Okay, so the Jacobson radical of a ring A is defined to be the intersection of all the maximal ideals of A. Okay, so it is defined to be the intersection of all the maximal ideals of A. So then we have with this definition we came to conclude this one. You can say it as a corollary of the previous theorem. So so it is denoted by, so just write this. The Jacobson radical of a ring is denoted by R. यहाँ पे आप लिख लें. It is denoted by, it is denoted by R. So then you can write this corollary as well. So A by R is a subdirect product of fields. Is a subdirect product of fields. A by R is a direct. If R denotes the Jacobson radical of a ring, then the quotient ring A by R is a subdirect product of fields. ओके ये कैसे होगा? जैसे हमने पीछे किया ना, जहां हमने फैमिली ऑफ आइडियल्स लिए थे उसी रिजल्ट से होगा. अगर आप आइडियल्स को एज ए, वो जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था लास्ट क्लास में, उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली टेक
the family Ji I in I as the family of all maximal ideals of A in the previous, जो हमने किया था observation in the last class, previous observation, उसमें अगर आप Ji को maximal ideals दोगे तो then you will get that if R denotes the Jacobson radical of a ring, then the quotient ring A by R is a subdirect product of maximal ideals. Clear? Now we have a membership test for this. Now before going to the membership test, we just want to conclude one more thing. You can write it as a remark. Now since the maximal ideals of of the quotient ring A by R, R यहाँ जैकबसन रेडिकल है, ठीक है। तो जो आप क्वोशिएंट रिंग लेंगे A by R, इसके मैक्सिमल आइडियल्स मैंने आपको बताया है वो किस फॉर्म के होंगे, हैव द फॉर्म M by R. Okay, where M is a maximal ideal of A, where M is a maximal ideal of A, ठीक है। तो जैकबसन रेडिकल ऑफ A by R क्या होगा? So the Jacobson radical of the quotient ring A by R, radical of the quotient ring A by R, ये इसके मैक्सिमल आइडियल्स इस फॉर्म के हैं, ठीक है। तो ये होगा इज R by R, है ना। यहाँ मैक्सिमल आइडियल्स आपके A by R के अगर M by R फॉर्म के हैं तो जैकबसन रेडिकल आपको सिर्फ यहाँ A का जैकबसन रेडिकल देखना है क्या होगा। A का जैकबसन रेडिकल तो हमने ऑलरेडी R लिया है, सो इट इज द क्वोशिएंट रिंग R by R. So this is actually the trivial ring R by R, the trivial ring. ओके, तो जो अगर R आपका जैकबसन रेडिकल है, तो अगर आप क्वोशिएंट रिंग का जैकबसन रेडिकल देंगे तो वो होगा R by R, एंड R by R मीन्स इट इज R itself. So the trivial ring. Now since now we want to know that what is the relationship between nil radical and Jacobson radical. So what do you think could be the relationship between nil radical and Jacobson? Eh? Nil radical is intersection of prime ideals. And Jacobson radical is intersection of maximal ideals. So what is the relationship then? Which one is bigger? Jacobson. Jacobson or nil? Nil radical. That every maximum ideal is Prime ideal. Good.
तो बड़ा कौन सा होगा फिर, नील रेडिकल बड़ा होगा या Nil, जैकबसन? है? nil radical. हाँ, नील रेडिकल बड़ा होगा, गुड। Yes, sir. सो नील रेडिकल, नहीं नील रेडिकल बड़ा नहीं होगा, जैकबसन बड़ा होगा, सॉरी। नील रेडिकल, नील रेडिकल इज कंटेंड इन जैकबसन रेडिकल, जैकबसन रेडिकल, क्योंकि हर कोई इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं, जस्ट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्गूमेंट। इफ यू वांट टू राइट द प्रूफ, सो आई विल जस्ट राइट इट। Let n denote the nil radical of A and R denote the Jacobson radical of A. Okay, so let X belong to N. This means X belong to intersection of all the prime ideals. X intersection P ideal in A, where P is prime, where P is prime. This means what? This means X belongs to P for all prime ideals. For all prime ideals of, for all prime ideals P of A. ठीक है, अब आपने सारे प्राइम आइडियल्स को कवर कर लिया, इसका मतलब आपने मैक्सिमल आइडियल्स को भी कवर कर लिया, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल्स भी क्या होंगे, होते हैं प्राइम होते हैं। So I can say that, so this implies that X belongs to M for all maximal ideals M of A। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल भी क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, तो अगर सभी प्राइम आइडियल्स में है तो सभी मैक्सिमल आइडियल्स में भी होगा। सो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स X belong to intersection M ideal in A M, where M is maximal, where M is maximal. So this means what? This means this means X belong to the Jacobson radical. So this means the nil radical is contained in the Jacobson radical. ठीक है, is it clear? Yes, sir. लेकिन अब हम आएंगे इसके मेंबरशिप टेस्ट पे। मेंबरशिप टेस्ट क्या था नील रेडिकल के लिए, मेंबरशिप टेस्ट क्या था हमारे पास, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? No, sir. अरे मेंबरशिप टेस्ट यही था ना कि हमने कहा कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल कोई एलिमेंट जैकबसन रेडिकल में। एक तो इसका करेक्टराइजेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ आइडियल्स, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स इसका करेक्टराइजेशन क्या था हमारे पास, कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल नील पोटेंट एलिमेंट्स। ठीक है ना, जी सर। एक्स बिलोंगिंग टू ए, तो एक्स नील रेडिकल में कब बिलोंग करता है, इफ एक्स इज ए X power n is 0. हाँ, इफ सो एक्स इज ए नील पोटेंट एलिमेंट है ना, जी सर। एक्स इज ए नील पोटेंट एलिमेंट, तभी तो बिलोंग करता है। Yes. तो किस टाइप के एलिमेंट नील रेडिकल में बिलोंग करते हैं, जब इसमें नील पोटेंट एलिमेंट बिलोंग करते हैं। सो वी हैव ए सिमिलर मेंबरशिप, वी हैव ए मेंबरशिप टेस्ट फॉर जैकबसन रेडिकल आल्सो। सो ए membership test exists also for the Jacobson radical, also for the Jacobson
radical. So in fact we have a theorem. So we have this theorem which gives the a test for test a set of test of membership for Jacobson radicals. So this is the theorem. So let X belong to A, then X belong to R Jacobson radical. कब belong करेगा? If and only if and only if for all y belonging to A, 1 minus xy is a unit in A, is a unit in A. ठीक है, तो कोई एलिमेंट रिंग का जैकबसन रेडिकल में तभी बिलोंग करेगा अगर हर किसी y जो कि A का है ये एलिमेंट यूनिट होना चाहिए, 1 माइनस एक्स वाई होना चाहिए यूनिट आपका. Okay, so this is a membership test for Jacobson radical of a ring. So let us see the proof of this theorem. We will use a contrapositive approach in order to just get this argument. Suppose 1 minus xy is not a unit for some y in A. So suppose 1 minus xy is not a unit for some y in A, for some y in A. ओके तो हमने पहले प्रूव किया है कि हर कोई एवरी नॉन यूनिट इज कंटेन्ड इन सब मैक्सिमल आइडियल है ना. सो वी नो दैट एवरी नॉन यूनिट ऑफ ए is contained in some maximal ideal of A, contained in some maximal ideal of A. ये तो हमने पहले प्रूव किया है. So this means what? This means that this means that 1 minus xy belongs to M, where M ideal in a maximal ideal in fact. ठीक है. Now if x belong to R, the Jacobson radical, हम अब contradiction से जाएंगे, then x belongs to M. इस M में भी होगा x. क्यों? क्योंकि x तो होगा फिर intersection of all the maximal ideals of A. तो इसका मतलब इस M में भी होना पड़ेगा. Since R is the intersection of all the maximal ideals of A. R is the intersection of all the maximal ideals of A. Okay, तो x m में भी होगा फिर. And so you can write 1 equal to 1 minus xy प्लस xy, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको. ठीक है ना. अब ये दोनों m के एलिमेंट है ना. This also is a member of M. This also is a member of M. So therefore the whole thing is in M. Okay. So which is impossible because a maximal ideal cannot contain a unit, which is impossible.
which is impossible as m is not equal to a. Hence x does not belong to R. ठीक है, x does not belong to R. तो हमने शुरू किया था if 1 minus xy is not a unit for some y in a, we got that x is not in R. तो अगर इसका उल्टा लिखेंगे हम, so this means x belonging to R implies 1 minus xy is a unit in A for all y in A. Okay, so we get one way round, we get again the second part. Again we will go by contrapositive argument. Now suppose x does not belong to R, then so x does not belong to the intersection of all the maximal ideals, so therefore x does not belong to M for some maximal ideal M, for some maximal ideal M. ठीक है, now if you take the ideal generated by M and X, so by maximality, if you take the ideal generated by, so if I take ideal generated by M union this singleton X, ऑब्वियसली ये M से बड़ा आइडियल है क्योंकि आपने एक एलिमेंट और इंक्लूड किया और उससे इस आइडियल को जनरेट कर रहे हैं. सो दिस इज अ बिगर आइडियल देन M. So M is maximal, so this ideal has to be A then. This ideal to be has to be A. Now what are the members of this ideal? Members of this ideal are of the form M plus XY such that M belong to M, Y belong to A. So this means A equal to this one. This means what? Every element of A can be written in this form. ठीक है ना? एक अगर A आपका इस फॉर्म का है तो इसका मतलब है A का हर कोई मेंबर आप ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में. इन पर्टिकुलर आप 1 को भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में. सो इन पर्टिकुलर one is also equal to M plus XY for some M in M and Y in A, for some M in M and Y in A. ठीक है, and this implies what? This implies what? क्या मिलेगा इससे हमें? यस, इससे आपको ये मिलेगा कि 1 equal to you will get that 1 minus xy equal to M belonging to M. Now if 1 minus xy is a unit, then M has to be A. M has to be A. But M is not equal to A because it's a maximal ideal. But M is not equal to A. So this means what? 1 minus xy is not a unit. So this means 1 minus xy is not a unit.
So thus we get the theorem. Thus, so 1 minus xy अगर unit होगा, so 1 minus xy is a unit. It should imply that x belongs to R, and we get the theorem, and the theorem is proved. Is तो आपके पास एक मेंबरशिप टेस्ट आ गया मैक्सिमल आइडियल्स के लिए भी, आपके पास एक मेंबरशिप टेस्ट, सॉरी इस जैकबसन रेडिकल के लिए भी एक मैक्सिमम मेंबरशिप टेस्ट है, और वो ये है कि 1 माइनस एक्स वाई इज ए यूनिट फॉर ऑल वाई इन ए। तो अभी हमने देखा कि नील रेडिकल कंटेंट होता है जैकबसन रेडिकल में, लेकिन कुछ ऐसे रिंग्स हैं जहाँ पे नील रेडिकल और जैकबसन रेडिकल सेम हो जाएंगे। कहाँ होंगे? आपका क्या आइडिया है इसके बारे में भाई? So we shall see some examples. ठीक है, अगर मैं रिंग को इंटीग्रल डोमेन लूं तो नील रेडिकल क्या होगा फिर? In any integral domain, the nil radical is trivial. The nil radical is, कौन बताएगा ये मुझे क्यों ट्रिवियल होता है? यस प्लीज, बोलो भाई। हाँ, रोल नंबर 9 कौन है? 9, हु इज 9? हु इज रोल नंबर 9? Yes, sir. अनम्यूट करो भाई, जरा आप अपना ऑन करो, वीडियो ऑन कर दो, पिक्चर किया? हाँ Yes, sir. बताओ क्यों ट्रिवियल होगा नील रेडिकल इंटीग्रल डोमेन में? क्या नाम है आपका? Sir, Andeep. हाँ अंदलीब, बताओ यार। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाता हूँ? Yes, sir, आता है। तो फिर बताओ क्यों होगा? अरे हमने पीछे किया ना, कोई भी नील पोटेंट एलिमेंट हमेशा जीरो डिवाइजर होता है, मैंने आपको बताया ना बिगिनिंग में। एवरी नील Yes, पोटेंट sir. एवरी नील पोटेंट एलिमेंट इज ए जीरो डिवाइजर, ठीक है ना? Yes, sir. तो इंटीग्रल डोमेन में कहाँ होते हैं जीरो डिवाइजर्स? नहीं होते हैं। Only zeros. ओनली जीरो इज a जीरो डिवाइजर, वही तो सिंपल है। Since an integral domain has no non-zero zero divisors, है ना? Since an integral domain has no non-zero nilpotent elements. Nilpotent elements, इसका मतलब ये जो रिंग है आपके Z, है ना, इसमें Z में आपका नील रेडिकल हमेशा ट्रिवियल होगा। And in any, if I take any local ring, if A is a local ring,
यूनिक होगा। तो जैकबसन रेडिकल क्या होगा? देन द जैकबसन रेडिकल is what? Unique maximal ideal. Unique maximal ideal. Good. Is the, ये किसने बोला? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? Is the unique maximal ideal. शाफिया। रोल नंबर क्या है? Maximal ideal. 37। Very good. ठीक है, तो ये अच्छा है। तो अगर मैं A को Z ले लूंगा तो आपका, और नील रेडिकल और जैकबसन रेडिकल बराबर कहाँ होंगे? है ना? If A is PID, if A is a principal ideal domain, if A is a principal ideal domain, then the nil radical is same as the Jacobson radical. क्योंकि हमने PID में क्या किया है प्रूव? We know that in a PID a non-zero ideal is maximal if and only if it is prime. ये रिजल्ट है ना आपके पास, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा लेकिन इसको याद रखना। इसका प्रूफ तो बहुत सिंपल है बट इसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए PID, शायद मैंने आपको बताया है प्रीवियसली, इन ए PID a non-zero ideal, a non-zero ideal I is maximal if and only if it is prime. ठीक है, तो PID में है N और R हमेशा सेम होंगे। N nil radical is same as Jacobson radical। और PID इन द फर्स्ट प्लेस तो इंटीग्रल डोमेन होता है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन PID द nil radical is same as Jacobson radical and it is trivial, it is trivial। ठीक है, तो आपके जो हैं Z है, Z भी PID है, Fx where F is a field, where F is a field। तो ये तो इस टाइप के रिंग्स आपके PID हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, सो इस केस में आपका, इन दोनों केसेस में आपका नील रेडिकल और जैकबसन रेडिकल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसमें क्या होगा? ये जो रिंग है आपका ZI, इसमें क्या होंगे नील रेडिकल और जैकबसन रेडिकल? कौन बताएगा मेरे को? रोल नंबर 29 बताओ। 29 कौन है? जी सर। जरा अनम्यूट करो, बताओ। क्या होगा? सर पता नहीं। ये PID है नहीं, इतना ही तो जानना है। इज इट PID? ZI PID होता है क्या? नो सर। नो। यूक्लिडियन डोमेन होता है नहीं होता है? यूक्लिडियन डोमेन होता है नहीं? हाँ आप बताओ। कौन बताएगा मुझे? आप बताओ रोल नंबर 31। ZI जो है वो यूक्लिडियन डोमेन होता है नहीं होता है? यूक्लिडियन डोमेन तो पता है ना आपको क्या होता है?
सर। है? सर। यूक्लिडियन डोमेन नहीं पता है आपको? नहीं सर। फिर तो मुश्किल हो गया आपको पढ़ाना। एक्चुअली ये होता है, यूक्लिडियन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, है ना? यूक्लिडियन डोमेन implies principal ideal domain. Principal ideal domains implies unique factorization domain. एक्चुअली ये होता है आपका, हर ऐसे कंटेनमेंट होती है, हर कोई आपकी फील्ड जो है वो इम्प्लाई करती है इंटीग्रल डोमेन। हर कोई फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। इंटीग्रल डोमेन हमेशा यूक्लिडियन डोमेन होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसी उसकी है। और यूक्लिडियन डोमेन हमेशा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होते हैं, और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हमेशा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होते हैं। ठीक है? सो बट ऑल द कंटेनमेंट्स आर प्रॉपर, ऑल द कंटेनमेंट्स आर प्रॉपर। आपको कौन पढ़ाता था पहले भाई अलजेब्रा? सर हमने रिंग थ्योरी नहीं पढ़ी है। क्या पढ़ा है अलजेब्रा में? रिंग थ्योरी नहीं पढ़ी है तो अलजेब्रा हाक पढ़ी है फिर? कोई मुझे ये कहे कि मैं श्रीनगर आया हूं और मैंने लाल चौक नहीं देखा है, तो मैं कहूंगा तुम कहाँ थे फिर, कहाँ सो रहे थे? पता नहीं। हैं? कोई आदमी श्रीनगर आ गया और उसने लाल चौक नहीं देखा, तो वो तो फिर आया ही नहीं श्रीनगर। सर तब लॉकडाउन हो गया था, फिर हमें किसी ने नहीं पढ़ाई रिंग थ्योरी। अब मैं इन चीज़ों को आप इतने डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता, अलबत्ता मैं थोड़ा सा आपको ही थोड़ा दे यूक्लिडियन डोमेन एक्चुअली एक इंटीग्रल डोमेन होता है जिसपे आप एक नॉर्म डिफाइन करते हैं, है ना? उस नॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है? और यूक्लिडियन डोमेन में हर कोई आइडियल प्रिंसिपल होता है, एक रिजल्ट है इन यूक्लिडियन डोमेन एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल। इसका मतलब इसी से हमें मिलता है कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी आपको नहीं पता होगा फिर? पता है भाई? नहीं? नो सर। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक दो लेक्चर दूं फिर इस पे, है ना? मुझे लग रहा है आई शुड गिव 1 or 2 लेक्चर, जस्ट थोड़ा सा इसको आप